Welcome to the Orange City Literature Festival organized by Raisoni Foundation. My name is Akanksha and it is my pleasure to welcome you all. Our next session, More Than Just a Snapshot, 18 years capturing the untamed wildlife, takes us deep into the raw, unpredictable beauty of the wild. Our speaker, Varun Thakkar sir, is a celebrated wildlife photographer and entrepreneur from Nagpur whose journey began in 2007 with a camera and a call of the jungle. Over the past 18 years, he has captured India's national parks and Africa's great wildlife plains through his lens, documenting big cats, rare Himalayan species, and spectacular landscapes. Having photographed over 700 tigers, he carries a reputation as a good luck charm for tiger sighting. His work has earned national and international acclaim, being showcased by leading organizations and featured widely including on the Discovery platforms. In addition to his photography, Varun also manages his family insurance company and runs a successful camera rental venture, combining his business acumen with his creative passions. For him, photography is more than passion. It's a mission in conservation awareness. In conversation with him is Rohan Patole, a dynamic storyteller and media visionary. Rohan is a director, creative head, travel and food show presenter, director with Travel XP and National Geographic, a TEDx speaker, podcast presenter, part-time YouTuber, and a nominee at the Indian Television Awards. He currently serves as a creative head at the Raisoni Group. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. Varun Thakkar and Mr. Rohan Patole with us. I now hand over the mic to Rohan sir to lead us in your captivating session for the next 40 minutes. Thank you so much, Akansha. Thank you so much for everyone coming. So glad to have you here. I'm so excited to talk to you. I quickly wanted to understand from you guys, okay, so that we know what we are going to ask. I know what I'm going to ask him. How many of you are actually into photography, wildlife photography, any sort of photography, travel, content creator? तो हमें पता होगा कि हम किससे बात करें, हमारी ऑडियंस कौन है. ठीक है, कोई है फोटोग्राफी में? आप है शायद, आप भी नहीं है, आप है सर. Okay. What is that one thing which you thought after reading it into the itinerary that this session is going to be fun for you? खाना हो गया, एसी चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना? एक चीज जो आप यहाँ पे जहन में रख के आया है कि ये आज मजा आएगा यहाँ पे. हाँ जी. Actually, I'm an environmental planner, but I love wildlife as well as forest. You are an environmental Planner. planner, and you love wildlife. ये contradict नहीं हो रहा है दोनों? No, not really. Actually, environmental planners actually save forests. Okay, अच्छा ऐसा है. हाँ, so that's why I was intrigued by the title of the. Okay, तो मैं quickly ना एकदम एक layman terms में before I start asking question to sir मैं आपको बता देता हूँ कि हम exactly बात क्या करने वाले हैं. So मैं एक डायरेक्टर हूँ, निर्देशक हूँ जो ट्रैवल शोज करता है. आंखें बंद कीजिए, वो इंसान जो दुनिया घूमता है, बढ़िया से बढ़िया होटल में रहता है, बहुत कमाल की स्टोरीज लिखता है और उसका पैसा कोई और देता है, वो मैं. ठीक है, सर जो है he is into wildlife photography. घंटों घंटे शेर की जो एक आप फोटो देखते हो ना, उसके पीछे महीनों, घंटे भी नहीं, महीनों लग जाते हैं. So he is going to talk about his photography stories. Today आज हमारा एक अहम जो मुद्दा रहेगा वो है कहानियाँ. Everybody talks about knowledge. We are going to talk about stories. जो भी फोटोज देखेंगे आप इस LCD पे आज, उसके पीछे की कहानी क्या है, उसके ऊपर हम बात करेंगे. मजा आएगा? Okay? Alright. So वरुण सर, thank you so much. आप हमारे वेटरन हैं हमेशा. ये मेरा पहला साल है. आप ये कौन है भाई? और भी स्पीकर्स है क्या पीछे? Okay. So ये हमारा, you have been a veteran with OCLF and Raisoni Foundation. And the first thing when I was told that I want to be a moderator, I went to Mrinal Naik and I told her, like कि मेरे जॉनरा वाला कोई दो, मतलब वरुण है आपके जॉनरा वाला. कैसे रहा आपका सफर? थोड़ा सा आकांक्षा ने तो खैर बता ही दिया है, but I wanted to know that this
इज अ पैशन, दिस इज sheer पैशन, क्योंकि इसमें पैसे कमाने में बहुत टाइम लग जाता है, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव डोमेन. हाउ डिड इट ऑल बिगिन? आई अंडरस्टैंड द स्टोरी फ्रॉम 2007, बट वो कब क्लिक हुआ? व्हाट इज दैट क्लिक, एंड देन परहैप्स आई विल गेट इनटू द क्वेश्चंस. Hi. So basically, it all started in 2007, as I said, and photography is something जो कि wildlife photography especially, it is something जो कि किसी को भी आदत लगा सकती है बहुत जल्दी. So I used to go to the forest as a tourist. So काफी साल पहले की बात हो गई, 2003, 2004. And I used to look at people clicking pictures with those bigger lenses. So समझ में आता तो नहीं था कि ये क्या है. हम एक छोटा सा पॉइंट एंड शूट लेकर भी जाते थे. We used to compare ourselves with them. कि आपके पास ये कैमरा है, कैमरा तो मेरे पास भी है, बट वो फोटोज क्यों नहीं आते. सो जब वैसे लोगों को फोटोग्राफी करते हुए देखा तो तब फिर लगा कि शायद ये भी कुछ करना चाहिए. एंड आई ट्राइड माई हैंड ऑन इट. ये मेरे एक फ्रेंड ने भी मुझे काफ़ी फोर्स किया था ये चीज़ में. who owns one of the oldest studios in Nagpur called Moonlight. So his name is Naveen Verma. So Naveen pushed me into it and he said कि अब इतना जंगल आप घूमते हैं तो why don't you try photography. And जब first time मैंने wildlife photography शुरू की तब फिर ऐसा लगा कि this is something different. Like इसमें एक next level of satisfaction है. So I bought my first DSLR, which was a Nikon D200 with a basic 7300 का lens and started it. So this is how it began, and अभी it's been 18 years, day in day out. खाने पीने से ज़्यादा फोटोग्राफी और जनरली ज़्यादा सोचता है. ठीक है सर, चलिए हम आपकी पहली इमेज से शुरू करते हैं. आई वांट यू टू टेल मी अ स्टोरी बिहाइंड वन पिक्चर फ्रॉम वेयर इट वाज डिसाइडेड दैट दिस इज, ये तो काफी एडवांस वाला है, लेकिन एक वो हमारी जो कहानियां हैं वो पहली पिक्चर वहां से शुरू करके जहां से आपको लगा कि इसमें मैं कुछ करना चाहूंगा, इसमें मुझे पैशन है इस चीज का, वो क्लिक कहाँ से हुआ था, वो फोटो से शुरू करते हैं. See, basically there is no specific picture. ऐसा कोई एक इमेज नहीं है. बट बात ये थी कि मैं लोगों को देखता था कि इसी टाइप के ऐसे बड़े बड़े लेंसेज लेकर के घूमते थे सब. सो मन ख्याल होता था कि इससे फोटोज कैसे आते होंगे. सो मैं कभी किसी का लेंस यूज करके देखा, कब कुछ किया, बट आखिर में एक ही चीज समझ में आई कि इफ यू वांट टू बी डिफरेंट यू हैव टू थिंक डिफरेंट, यू हैव टू बी डिफरेंट, यू हैव टू डू डिफरेंट. सो व्हाट आई फील पर्सनली इज वाइल्ड लाइफ में इट्स योर पर्सपेक्टिव दैट मैटर्स. अगर आपका नजरिया एक अलग है तो आप काफी कुछ चीजें अलग तरीके से कर सकते हैं. So, मेरे लिए एक अलग चीज होना इसमें था was to make my own perspective a different perspective, and I wanted people to see my perspective. कि आज आप एक टाइगर को चलते हुए देखते हैं, लोग ये कहते हैं कि वाह क्या क्लियर फोटो है, कितनी अच्छी फोटो है. तो वो तो ऑफकोर्स सभी को पसंद आती है, बट मेरा नजरिया कुछ अलग है which I would like to show. So, जैसा कि मैंने कहा कि the perspective, एक नजरिया. सो आप जैसे कि अभी जो पिक्चर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इवन दिस पर्सपेक्टिव शोज कि आज हाथी आज एक कितना बड़ा जानवर है. आज करीब 15-20 फीट की हाइट एंड हजारों टन का वजन है उस जानवर में. बट हमारे नेचर के सामने, लैंडस्केप के सामने ये 40-50 हाथियों का झुंड भी कितना छोटा लग सकता है. सो दिस इज व्हाट पर्सपेक्टिव इज. सो इसलिए मैंने ये फोटो एक वाइड एंगल में शूट किया था, जस्ट टू शो द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस लैंडस्केप, या एक मेरा पर्सपेक्टिव जो लैंडस्केप में हाथियों को कितना छोटा बता सकता है. देन फिर ये एक पिक्चर है, दिस इज फ्रॉम संजय टुकड़ी टाइगर्स ऑफ मध्य प्रदेश. एज आई टोल्ड यू कि टाइगर दिखता है तो लोग यही सोचते हैं कि ये कितना क्लियर फोटो है, कितना अच्छा फोटो है, बट एज आई सेड द पर्सपेक्टिव. So what I wanted to show here is कि ये टाइगर का हैबिटेट यहाँ पर ऐसा भी है. So ये जो पिक्चर है इसको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से अवार्ड मिल चुका है एंड और एक इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है. एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द पर्सपेक्टिव. आपको मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा, बिकॉज वी आर इनटू नेशनल ज्योग्राफी का नाम सुना है आपने, जैसे सर भी करते हैं. सो हमें एक स्पेशल एंट्री होती है. आप अगर कभी कोई टाइगर सफारी में गए थे, देयर इज अ कोर जोन, देयर इज अ बफर जोन.
एक टूरिस्टी ट्रैक रहता है जहाँ पे आपको जिप्सी में बैठना होता है, बट व्हेन वी आर फिल्मिंग ऑन अ प्रोफेशनल फ्रंट, हमारे जो ये जो ट्राइपॉड्स है, इसका जो पूरा जो अटैचमेंट्स रहते हैं सारे वो जिप्सी के ऊपर लगे रहते हैं। एंड एक्सपेंसिव, क्योंकि लेंसेज बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं, ये कैमराज जो है जिसमें वाइल्ड लाइफ, वो शेर जो है वो वहाँ पे रखा है, बट फोटोग्राफी की वजह से वो पास में दिखता है। It's a very, when I told you that it's a very expensive affair, I wanted to tell you that, for example, sir, please correct me if I'm wrong. We were filming for one tigress, somewhere in Ranthambore or someone called Sita. 6 महीने एक टाइग्रेस के ऊपर रिकॉर्डिंग कर रहे थे, 1 घंटे के डॉक्यूमेंट्री के लिए, एक 60 सेकेंड्स के डॉक्यूमेंट्री के लिए 6 महीना। और एक बार आप जब जंगल में जाते हो पोर्सन, तो आपके लिए कुछ अलग ट्रैक्स जहाँ पे आता है, साइकिल जहाँ पे मोटा हो जाता है। सर, the cost of gypsy and the camera was 1 lakh rupee per day, 1 लाख रुपए का। तब जाके, और ये पता नहीं, ये सर्कस के शेर तो है नहीं कि आ जा भाई हम आ गए, वरुण भाई आगे चलो एक वॉक दे दो। इसके लिए सर मैं जानना चाहता हूँ कि कितना टाइम आपने इस फोटो के लिए वेट किया है? ये पिक्चर के लिए फ्रैंकली हम लोग 8 दिन रुके हुए थे संजय डुगरी में। जब हम इस लोकेशन पे गए एंड यहाँ जब मैंने लोकल से पूछा, जो हमारे गाइड ड्राइवर से आए, कि क्या 1% भी चांस है कि यहाँ से टाइगर क्रॉस करे, और यूजुअली इतने खुले लैंडस्केप में से टाइगर नहीं जाता था। तो यहाँ पे जाने के लिए मैं इस डायरेक्शन में शूट कर रहा हूँ, मेरे बैक साइड एक पैच था जहाँ से नदी बहुत पतली थी और टाइगर यूजुअली वहीं से क्रॉस करते थे। तो ये जो फोटो लिया हुआ है, इस वक्त यहाँ पर 7 टाइगर एक साथ थे एंड हम वेट करते थे, ये कैटल किल पे ज्यादा सर्वाइव करते थे टाइगर, तो हम वेट करते थे कि ये टाइगर, आप जो पिक्चर देख रहे हैं इस तरफ पीछे गांव है, सो हमने वेट किया कि कब वो टाइगर उस गांव में घुस के कैटल किल करेगा। और अगर कैटल किल होगा तो हमको पता है कि वहाँ पे लोकल्स भी उनको परेशान करेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ पर आएगा, सो चांसेस आर कि शायद टाइगर इस तरफ से निकले। तो जिस दिन 6वें दिन जब हमने प्लान किया कि यार अब बहुत हुआ है ना, लगता नहीं कि टाइगर यहाँ आएंगे, एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग वी वर अबाउट टू लीव, तो हमको रात को 9:30 बजे फोन आया कि 7 टाइगर उस गाँव में घुसे हैं एंड एक घर में घुस के 2 भैंस मारी। देन वी वर श्योर कि अब टाइगर तो मिल जाएगी कल सुबह, बट यहाँ से क्रॉस करेंगे या नहीं करेंगे। एंड लकीली नेक्स्ट डे मॉर्निंग करीब 3-3.5 घंटा वेट करने के बाद सडनली आउट ऑफ नोवेयर ये टाइगर वहां से निकला एंड भागते हुए ये पूरा रिवर बैंक क्रॉस करके, नदी क्रॉस करके चला गया। तो ये हार्डली आई थिंक 5 सेकंड या 6 सेकंड की साइटिंग होगी, बट वो 6 सेकंड के लिए हमको 8 दिन रुकना पड़ा। 8 दिन के बाद आपको एक अवार्ड्स में तो मिले, इसलिए तो 8 दिन। सर, कभी ये तो काफी दूर है, कभी वाइल्ड लाइफ के साथ अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर्स हुए हैं कि आप एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहे, या कभी जो जिसने आपके रोंगटे खड़े कर दिए, व्हिच हैज गिवन यू गूज़बम्प्स, ऐसी कोई तस्वीर है जो एकदम आपको लगा कि बॉस ये तो काफी क्लोज एनकाउंटर? बिल्कुल, मैं आगे कुछ वैसा दिखाने भी वाला हूँ ऑन अ पॉजिटिव साइड, एंड ऑफ कोर्स उससे कुछ सीखने भी मिलेगा काफी लोगों को। सो वो सब चीजें मैंने लाइन अप करके रखी हुई। ठीक है, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पिक्चर। सो अगेन ये एक थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव, दिस इज फ्रॉम कान्हा टाइगर रिजर्व, जो कि टाइगर रिजर्व एक हमारे दिमाग में एक ही आता है कि वी आर इन टाइगर रिजर्व है, वहाँ क्या करना है, टाइगर देखना है। बट उस चक्कर में हमें इतनी कॉमन स्पीशीज होती है, कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम इग्नोर करते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं। बट बीइंग अ फोटोग्राफर, वाइल्ड लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट टाइगर्स, वो काफी आगे है उसके। सो ये सब चीजें जो है, मैं और मेरी वाइफ हर विंटर हम लोग कान्हा करीब 8-10 दिन जाते हैं सिर्फ वाइल्ड लाइफ शूट करने, एंड दैट इज समथिंग अदर देन टाइगर्स। अगर हमको पता चलता है कि आज रोड पे टाइगर चला है तो हम थोड़े निराश हो जाते हैं, क्योंकि अगर रोड पे टाइगर चला है तो मैदान से बारहसिंगा चला जाता है, क्योंकि टाइगर चला है तो हमको बारहसिंगा डिस्टर्ब होकर कहीं दूर चला जाएगा। बट विंटर्स में हम कान्हा जाते हैं सिर्फ बारहसिंगा शूट करने के लिए। तो अगर टाइगर वहां से चलता है तो पहली बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा बुरा मान जाते हैं कि टाइगर क्यों चल गया, बारहसिंगा डिस्टर्ब हो गया होगा। बट उसके रिजल्ट्स भी हमको मिले काफी, क्योंकि बारहसिंगा की इमेजेस मेरी BBC फाइनल में जा चुकी है एंड काफी अवार्ड्स मिल चुके हैं। सर, एक सवाल था मेरा, ये अलग अलग टेरेन रहता है। लेट्स से नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टाइगर्स,
टाइगर ऑफ बांधवगढ़ will be very different to टाइगर, टोपोग्राफी अलग रहेगी, टाइगर ऑफ लेट्स से सुंदरबंस, वहाँ के टाइगर्स तो स्विमर है और एक 10-10 किलोमीटर स्विमिंग करते हैं टाइगर, कभी सुना है? झाड़ पे चढ़े जाते हैं क्योंकि वहाँ की टोपोग्राफी वैसे है, इट्स मार्शलैंड। डू कंपेयर टू टाइगर्स ऑफ लेट्स से साइबेरिया। टाइगर्स तो आप बाहर का देश तो छोड़ दीजिए, हमारे ही देश में आप टाइगर की शक्ल देख के बता सकते हैं कि ये टाइगर किस पार्ट का है इंडिया के, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल इंडिया। अगर सेंट्रल इंडिया भी है तो ये ताड़वा का टाइगर है, पेंच का टाइगर है, कान्हा का, बांधवगढ़ का, करना का, ये आप शक्ल देख के पहचान सकते हैं। Really? Of course. I wanted to ask this thing. This is a very stupid question. I'm still asking now because why are they called Royal Bengal tigers? Because that is a species. But what is the connection with Bengal? Because ये एक सी इंडिया में जो बहुत stupid question है सर आपके लिए, लेकिन ऐसी क्यूरियोसिटी था। किस का ये सवाल था जो शायद पता हो? मेरे को पता ही नहीं है ना भाई, मैंने पूछ लिया सर। बाद में कहाँ मिलेंगे बोलो? सो रॉयल बंगाल टाइगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब टाइगर की स्पीशीज से सब स्पीशीज जब डिवाइड हुई थी, लाइक अमोर टाइगर, साइबेरियन टाइगर, इंडो चाइनीज टाइगर, उसी टाइप से एक इंडिया साइड जो टाइगर मिलता था उसको नाम दिया गया था रॉयल बंगाल टाइगर, क्योंकि मे बी हो सकता है दैट हैज अ कनेक्शन फ्रॉम द सुंदरबन साइड ऑफ एरिया, बिकॉज बंगाल इज कनेक्टेड विद बांग्लादेश एंड वो जो पार्ट है फॉरेस्ट का वो काफी बड़ा पार्ट है। हम जो सुंदरबन की बात करते हैं इंडिया में, दैट इज हार्डली 20% ऑफ व्हाट द सुंदरबन इज, सो मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजन। सो इवन जस्ट मैं पर्सपेक्टिव की बात करता हूँ फोटोग्राफी में, सो इवन दिस इज अ पर्सपेक्टिव जहाँ पे आई show the typical. I really like one thing about you Varun is हम जब फोटोग्राफी करते हैं शेर दिखा तो हम क्या करेंगे? जूमिंग, क्लोजअप, करेक्ट? मोस्ट ऑफ देम, बट ये इतना to have a bigger, larger perspective. You're getting what I'm trying to tell you. If all the images, last 3 images, the top angle, अगर कोई भी रहता ना जूमिंग करता वो शेर जा रहा है वहाँ पे, but nobody thinks of it as a bigger picture. Same thing here. That tells the picture itself tells you so much about the wildlife ecosystem. अगर एक शेर रखा है तो उसके लिए 100-12 सिंगार रखने होते हैं ताकि नहीं तो शेर खाएगा क्या? तो इकोसिस्टम मेंटेन करना पड़ता है। Pictures tells you everything about the ecosystem and the jungle and there's so much going on than just tigers. टाइगर बहुत overrated है ऐसा लगता है आपको? नहीं, वो चीज ही ऐसी। अच्छा। जब मैं किसी का सेशन ले रहा था मैंने कहा कि नागपुर has been promoted as the tiger capital of India. ओके, एक तो हम महाराष्ट्र का भी हिस्सा है, महाराष्ट्र में एक है ताडोबा, बाकी तो सब एमपी चला गया है, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, दिस इज ऑल एमपी, बट वी प्रमोट बिकॉज़ इट वाज ऑन ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। क्या टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया, वो से द लार्जेस्ट फेस्टिवल ऑफ सेंट्रल इंडिया, बट अमेजिंग। प्लीज मूव ऑन वरुण, थैंक यू। सो अगेन ये भी एक थोड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव जहाँ पे दो टाइगर्स बैठे हुए हैं, बट या आई प्रेफर शोइंग द होल हैबिटेट कि वो किस हैबिटेट कितने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आपने शूट किया? ये तो काफी डिस्टेंस आई थिंक 20-25 मीटर के ऊपर। कौन सा लेंस यूज किया? 70-200। Then again a different perspective. This is उत्तराखंड कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। यहाँ पे मैंने काफी छोटा लेंस यूज किया था 50 mm 1.8। तो उत्तराखंड में हाथी शूट करने जाता हूँ हर साल। So वहाँ पे टाइगर्स शो किया है फॉर शूटिंग एलिफेंट्स, क्योंकि एक ये ऐसा पर्सपेक्टिव हम वहाँ बना सकते हैं। Then again this is कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड के बहुत सारे यू नो द टाइगर्स और द लेपर्ड ऑफ कुमाऊं जो कॉर्बेट ने बहुत सारे रखे हुए थे। Have you ever experienced something as scary? You know, have you ever? Let me be very blunt. Have you ever shot, as in picture of a man-eater? How can you describe a tiger man-eater? आप कैसे बताओगे कौन क्या man-eater? Like for example, I was in Bandhavgarh. We were filming with the royalties of Bandhavgarh, which is the Maharaja of Rika. तो आप वो हमें कोलसोन लेके गया, वो पे उनका एक गेस्ट हाउस छोटा सा बना हुआ था, and they kept one tigress. उनका एक दांत निकल गया था, and she apparently killed couple of वो जंगल में we are easy humans are easy prey, तो उन्होंने रखा हुआ था। तो और वो जो हम जू में या सर्कस में और जो रियलिटी में टाइगर्स देखते हैं ना, जमीन आसमान का फर्क रहता है। बट कभी कहानी सुनी होगी आपने कि पहली चीज तो आई डोंट नो कि मैन ईटर वर्ड कब यूज हुआ था यहाँ पर, क्योंकि जितने ह्यूमन किल्स हुए वो they have been killed, they have not been eaten.
एंड जितना भी किल होता है वहाँ पे आई वुड स्टिल नॉट ब्लेम टाइगर, क्योंकि जहाँ भी किल हुआ है वो ह्यूमंस की पोजीशन ही ऐसी थी। एक तो सुबह जो गांव में व्हेन पीपल गो टू आंसर नेचर कॉल, तो वो नीचे बैठे हुए हैं। दूसरा जब वो महुआ चुनते हैं वो नीचे बैठे हुए हैं, तेंदुपत्ता चुनते हैं वो लोग नीचे बैठे हुए हैं। सो टाइगर यही समझता है कि वो उसका प्रे है। आज हम लोग इतने सालों से वाइल्ड लाइफ में हैं, बट कभी अगर ऐसा हुआ कि हम कभी पैदल अगर टाइगर देखते हैं, मौके ही कम आते हैं वो, क्योंकि टाइगर इंसान को देख करके ही भाग जाता है। ये सुनने में आपको शायद बड़ा अजीब लगेगा, बट यहाँ हमारे साथ एक बहुत सीनियर ऑफिशियल भी बैठे हुए हैं, तो वो भी ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे इस बारे में डिटेल में। बट हम जितना टाइगर का सोचते हैं कि ये इतना खतरनाक है, मैन ईटर है, ये है वो है, ये बहुत गलत इमेज बनाई गई है उस जानवर की। आज अगर हम यहाँ बैठे हैं शांति से, हमको कोई कुछ करेगा नहीं, कोई चला जाएगा सामने से, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, बट अगर यहाँ बैठे और कोई अगर एक टपली मार के जाएगा तो चुप तो नहीं रहेगा ना। सेम है वो जानवर के साथ, अगर हम डिस्टर्ब कर रहे हैं उसके घर में घुस के उसको, वो क्यों शांत रहेगा? बट यस, टाइगर्स आर हार्मलेस अनलेस दे आर प्रोवोक्ड। सो जितने भी ह्यूमन किल्स हुए हैं, आई डोंट थिंक 99.99% में टाइगर की गलती होगी। वो बस उसका इंस्टिंक्ट है, उसका बिहेवियर है जिसकी वजह से किल हो रहे हैं। बट पिछले कई सालों में आई हैव नेवर हर्ड कि टाइगर ने इंसान को खा लिया, ये किस्सा नहीं हुआ। मारा है, आई एग्री, बट खाया है ऐसा नहीं सुना। यूजुअली क्या होता है, टाइगर जब मारता है तो वो जब सब अडल्ट होते हैं टाइगर के साथ, तो जब बॉडी फटती है, जो पैर पकड़ के अलग कर देते हैं, हाथ पकड़ के अलग करते हैं, तब ऐसा एक अंदाजा लगाया जाता है कि शायद बॉडी खाली है, इसीलिए वो वर्ड वहां लग जाता है मैन ईटर का। बट आई डोंट थिंक कि मैन ईटिंग के किस्से इतने में कभी हुए हैं। Correct. Out of all the images you have shown, Varun, I tend to understand or believe that you try to capture a very rare animal behavior. For example, this picture. इसके पीछे की कहानी बताइए। इसके पीछे की कहानी है कि ये एक पिक्चर आपको देखने में तो बस ये लग रहा हो कि हाथी लाइन से चल रहा है, बट द स्टोरी बिहाइंड इट इज कि हाथी कैसे चलते हैं। देयर इज अ मेट्रियार्क, जो हाथनी होती है झुंड की, वो यूजुअली हाथियों के झुंड की लीडर होती है, मेल नहीं होता है। सो आप इसमें देखेंगे तो बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए वो दैट मेट्रियार्क इज वॉकिंग इन द फ्रंट, उसके पीछे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सो ये एक हाथियों की क्या कहते हैं, दिस पिक्चर इज अ पार्ट ऑफ हाथियों का लाइफ। दिस वन पिक्चर शोज कि हाथी किस तरीके से अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, एंड जो हथनी सबसे आगे चल रही है वो इस झुंड में उम्र में और औहदे में सबसे बड़ी। सो दिस वन पिक्चर डिफाइंस दैट स्टोरी। देन अगेन दिस पिक्चर इज फ्रॉम केनिया, मसाई मारा। सो इस पिक्चर को भी काफी अवार्ड मिले थे। आई एम शोइंग यू दिस पिक्चर जस्ट टू शो अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इस वक्त भी मेरे पास वो बड़े 500 mm के लेंस से 300 mm का लेंस था, 70-200 था, बट आई प्रेफर्ड शूटिंग दिस पिक्चर ऑन अ 11 mm, 11 mm wide, just to show the whole habitat and the sky panorama and all. So even this got me a few international awards. Where do you prefer clicking most, in the savannas or in the tropical forest of India? Any time India. हमारे देश में इतना है कि शायद 7 जन्म भी कम पड़ेंगे, तो इंडिया इज नथिंग। मैं 10-11 दिन था केनिया में, एंड चौथे दिन रिग्रेट हो रहा था कि मैं क्यों अपनी जिंदगी के 11 दिन यहाँ खराब कर गया। शायद यही 11 दिन देश में कहीं अच्छी जगह और घूम सकते थे। He's absolutely correct. The diversity we have in India, you know, because we both are travelers. वो अपने काम के लिए travel करते हैं, मैं जो काम मैं करता था उसके लिए मुझे travel करना। The diversity is insane. मतलब आप नॉर्थ ईस्ट जाइए, नीचे लक्षद्वीप चले जाए, बगल में लक्षद्वीप है, अंडमान है, टाइगर्स की जो इतनी कहानियां, इंडिया इज ऑल अबाउट स्टोरीज। हर चीज की टेल मी वन थिंग, आप बर्फ देखने जाते हैं स्विट्जरलैंड, हाँ, रेगिस्तान घूमने जाते हैं तो करेक्ट, समंदर देखने जाते हैं आप मालदीव्स, हाँ। मालदीव्स। बट इंडिया इकलौता ऐसा देश है जहां आपको रेगिस्तान भी मिलेगा, समंदर भी मिलेगा, पहाड़ भी मिलेगा, जंगल भी है, ग्रासलैंड भी है, सवानास भी है। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई कंट्री ही नहीं जहां पे इतना कुछ है। सो बाहर जाना तो बात की बात है, पहले आप अपना देश तो घूम लीजिए।
Correct. आपको जो चीज बाहर मिल रही है वही सस्ते में यही मिल रही है. I think this one deserves once again a big round of applause. If you want to be a traveler, I come across a lot of students who say कि we want to travel, sir. मतलब पहले इंडिया घूम लो, फिर बाहर जाना. India is absolutely fun. It will change you completely. So moving on to the next image. So yeah, so this image recently won me an award in some country and ये जगह फाइनल में भी वहाँ भी होने वाला है. So story behind it is कि ये एक विंटर का पिक्चर है कान्हा टाइगर रिजर्व का. तो यहाँ एक छोटा सा एक पॉन्ड था, नॉट लेक. तो हमको पता था कि यहाँ सनराइज होता है, तो ये करीब 8 मिनट के लिए सनराइज में रिफ्लेक्शन दिखता है जब सनराइज हुआ है. तो ये एक अर्ली मॉर्निंग, ये जो कलर्स है दीज आर नॉट अननेचुरल कलर्स. ये विंटर का जो मिस्ट होता है ये वही ब्लू है. एंड जस्ट वो पॉइंट पे से स्पॉटेड डियर क्रॉस करके जा रहा है, जिसके लिए आई वेटेड एंड वो स्पॉटेड डियर लकीली वो सन के बीच में उस टाइम उस 8 मिनट के बीच में मिल गया. What time was this picture? This was early morning 7:22. What was now? I'll tell you the story behind it. What was the temperature while you were taking it? Might be 2 degrees or लोगों को नॉर्दर्न स्टार्स देखते हैं जब वो करते हैं ना, नॉर्दर्न स्टार जब आधे बर्फ में शूट करते रहते हैं, इट्स इनसेन. और इसके लिए आप कितने बजे उठे रहेंगे? रात को सोए भी थे इस शॉट के लिए? ये तो करीब 12 दिन से दिमाग में था, पर मैं 14 दिन कहाँ में था. अच्छा. तो 10-11 दिन से मैं देखता था कि यहाँ से सनराइज हो रहा है. वेट करके देखते थे घड़ी में कि 7.5 मिनट 8 मिनट तक इस पैच में सूरज दिखेगा. अब सन तो दिख गया, बट जानवर आएगा नहीं आएगा आपको पता नहीं. So luckily I think 11-12 दिन के बाद यहाँ पे spotted deer मिला and I was able to make this picture. Amazing. I loved it. Are you guys enjoying? Yes. Okay. Is it insightful? Yes. Is it helping you to gain a little bit knowledge about pictures, images, stories behind it? In the end, at the end, we'll have a Q&A round, and you may ask whatever you want to participate. Moving on, sir. So this is what I keep telling everyone, that wildlife is full of surprises. You never know कि अगले सेकंड क्या होने वाला है. अगला मिनट तो छोड़ दीजिए, अगले सेकंड क्या होने वाला है आपको पता नहीं होता है. So that's why wildlife is full of surprises. So इसमें I'll be showing some images which are very rare to get and जो कि काफी सोचना भी मुश्किल है. Yes, it is a porcupine. So एक porcupine भी वाइल्ड में देखना बहुत रेयर माना जाता है. And ये picture, I made this picture in Ranthambore, Rajasthan. So ऐसा कहते हैं कि tiger and leopards they hunt porcupine when they are aging या they are not able to hunt or maybe they are on the verge of dying. ऐसा माना जाता है. And leopards are much better hunter of porcupine than tigers. So unfortunately ये जो फोटो बनाया था मैंने, इसके 4 दिन बाद ही ये टाइग्रेस मर गई थी. She was called as arrowhead and she was very famous in Ranthambore. So जब ये porcupine खाते हुए देखा था तब मैंने वहाँ लोकल से पूछा भी था कि क्या इसकी तबीयत पे कुछ बात है, कुछ खराब है. And then they told me कि she is on the verge of dying, वो इतनी वीक हो गई है. तो इसके बाद मैंने एक लेक पर इसको देखा था जहाँ पे ये अधमरी हालत में ही थी. And 3 दिन बाद मैंने came back to Nagpur, so news है that she died. So that proves वो तो theory सही थी कि tigers and leopards they usually hunt porcupine when they are not able to hunt any bigger mammal जिसके पीछे भाग के या effort लेके वो पकड़ सके. Then ये एक 3 फोटो की story है which is very interesting. So this place is called as Jogi Mahal. ये भी रणथंभौर का है. If you see there is a tiger on the wall of Jogi Mahal. So earlier Jogi Mahal was used as a hunting palace or maybe a picnic spot for the VIPs. But in late 90s or early 2000s, there was a range officer in Ranthambore called Fateh Singh Rathore. So उन्होंने बाद में ये सोचा कि ये सब चीजें बंद करके we should give back wildlife जो wildlife का है. So यहाँ पे काफी हाई क्लास लोगों की पार्टी होती थी रात में. जैसे कि आप देख सकते हैं ये रिजर्व सिंह जोगी महल है. यहाँ पे बाहर लोग बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं. और दिस इज अ वेरी ओल्ड पिक्चर. एंड जब जोगी महल वाज गिवन बैक टू वाइल्ड लाइफ, जब यहाँ पे ये सब चीजें रोकी गई थी, इमीडिएटली आफ्टर फ्यू डेज वहाँ पे टाइगर्स आना शुरू हो गए थे. सो द वाइल्ड लाइफ हैड रिक्लेम्ड व्हाट इट वाज
originally for them. They still roam around in close proximity to humans, right? Resort के एरिया. रणथंभौर के लोग जंगल में ही है. हाँ, जंगल टाइगर सी कोर बफर एक डिमार्केशन हमारे लिए हमारे है, लिए है। जानवरों के लिए कुछ नहीं है. सो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी वहाँ की जोगी महल की, और जोगी महल की वॉल पे टाइगर बहुत कम चलता है. सो इसीलिए दिस पिक्चर इज स्पेशल बिकॉज ऑफ दैट कि आपको जोगी महल के आसपास टाइगर दिख जाता था, बट टाइगर एंटरिंग जोगी महल इज समथिंग very rare that has happened in Ranthambore, and I was lucky enough to be present at that place and make this picture. Then ये भी एक बहुत rare picture है सेंट्रल इंडिया के हिसाब से, जैसे ब्लैक पैंथर, ब्लैक लेपर्ड. तो डाउन साउथ में आपको ब्लैक लेपर्ड्स बहुत दिखते हैं, बट सेंट्रल इंडिया में ये ब्लैक लेपर्ड देखा गया था पेंच के बफर एरिया में. And these have been shot during a night safari, which were legal. So even this picture is very rare. ये भी काफी जगह publish हुआ था. मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ. नाइट सफारी में आप जब गाड़ी में रहते हैं, तो ये जानवर तो बस they jump hops के jump निकल जाएंगे, तो how do you manage to focus कैसे करते हैं? It's not necessary कि हर बार जानवर ऐसे करेगा. The animals are used to the vehicles, so they are used to everything. Okay. So ये लेपर्ड ने भी काफी टाइम दिया था, लेकिन 4 सेकंड 5 सेकंड तो था ये. आपके अच्छा 5 सेकंड इज way too much. बहुत टाइम हुआ. और ये लाइट जो है वो गाड़ी का लाइट Headlights. We are not allowed to use torches in the night safaris. How did you manage? What lens were you using? I was using the 300 2.8 यहाँ पे. Okay. Yeah, with the Nikon D4S. Okay. So low light performance वो equipment का काफी अच्छा. तो लाइट में अंधेरे में normally पिक्चर ब्लर हो जाती है, तो you know it's pretty sharp. तो yeah. So then यहाँ पे I'll be telling about few different terrains जहाँ पे मैंने शूट किया है अभी तक. वैसे दिखाने के लिए काफी कुछ है, बट टाइम के हिसाब से I prepared this week. So I've shot the Himalayan wildlife from the western Himalayas of the Uttarakhand to the eastern Himalayas, starting from Nepal, North Sikkim, West Bengal. So this picture is from the Himalayas, which shows the colors of the Himalaya. क्योंकि हिमालय की दुनिया एक अलग ही दुनिया है. लाइक तो आप मैं कितना भी बताऊँ आपको, बहुत जब तक आप जाके एक्सपीरियंस नहीं करेंगे वो आप फील नहीं कर सकते. So that bird here is called Himalayan monan. So Himalayan monan is a national bird of Nepal. And वो like एक मुर्गी की साइज का bird होता है, but it is full of colors. So this picture shows the habitat of a monan and the beautiful colors of the Himalayas. And this is a नीलगिरी तार. और जो महिंद्रा थार नाम रखा हुआ है वो इस जानवर पे रखा हुआ है, बिकॉज थार रहती एक ऐसे टेरेन में है जहाँ पे हम जैसे लोगों को खड़ा रहना भी मुश्किल है. सो दिस इज हिमालयन थार, एंड ये बर्ड को कहते हैं क्रॉसबिल. दिस इज फ्रॉम द ईस्टर्न हिमालयस, नेपाल, एंड जो आप बैकड्रॉप में देख रहे हैं दैट इज माउंट एवरेस्ट. Yeah, so this has been shot at 12,000 feet, a place called Sandakphu in Nepal. And then coming to आप जो पूछ रहे थे अफ्रीका. So अफ्रीका का एक फायदा मैं कहूँगा कि वहाँ पे आपको जो चीज़ देखने मिलती है that you are driving all the time on the horizon. आपको सनसेट भी horizon पे दिखेगा, सनराइज भी horizon पे दिखेगा, तो there's a good possibility that you get to make such images. जहाँ पे the sun is in the background. And of course ये cheetahs from Africa. अफ्रीका के टेरेन से 2 मिनट लूंगा. अफ्रीका के टेरेन थोड़ा सा अलग है, हमारा जैसा डेंस जंगल रहता है. What sir is saying is horizon. Horizon is where जहाँ पे आप देख रहे हो और सन आपको उगता हुआ आपने देखा होगा बहुत साल में. तो that space, that grounds are called savannah, जहाँ पे झाड़ होते हैं. Topography वहाँ का थोड़ा सा अलग है. And the big five, everybody know about the big five of Africa? So cheetahs, because हम लेके भी आए थे. Was they any good luck? Cheetahs like that, very good. Also forest department is taking very good care of. हमारे यहाँ का Of course, yes. बीच आप न्यूज़ में सिर्फ ये सुनते होंगे कि शायद इतने चीता मर गए, बट वो लोग ये नहीं दिखाते ना कि और कितने बच्चे हुए और वो कितने सरवाइव किए. So that project is doing very good. The fact that you have flicked couple of cheetahs here, did you get any shot of they sprinting around? Yeah. You got it? Okay. Tell us the story behind this. Amar Akbar Anthony के पीछे की story सुनिए. So
ये बेसिकली 5 चीतास थे साथ में, आउट ऑफ विच 3 ही एक अच्छे पिक्चर पोजीशन में थे. So I'm just showing these images to show the different kind of landscapes मैंने कहाँ शूट किया है अभी तक. Then this is an African lion early morning. And a lioness and Well, behavior-wise, how different are African lions to Indian गिर में जो हमारे एशियाटिक lions हैं, how different behavior-wise? behavior में काफी फर्क होता है ये चीज. Like if we talk about the African lions, they are much bigger in size and Asiatic lions are smaller in size. बाकी देखा जाए तो mostly overall behavior तो काफी हद तक same ही होगा, because species are same. वहाँ भी lions they live together, यहाँ पे भी lions they live together. So behavioral aspect if we talk तो काफी हद तक same ही है. Then एक this is an elephant at the sunset. So someone asked me कि आपको केन्या के बारे में क्या पसंद है, अफ्रीका के बारे में. So I replied the sky. क्योंकि वहाँ के sky में जो ड्रामा है वो इंडिया में पॉसिबल नहीं. One second, I love this picture. कभी एक सवाल था वरुण, with AI taking over, you know, with people making visuals, ये डालो prompt डालो, images मिल जाएंगी. क्या लगता है? And then you have a picture like this, जो हमने खींचा है 10 दिन, 12 दिन, 10 घंटा रुक के colors का ये करके. Mind you, this is not Photoshop, ना? Colors वगैरह सब naturally, correct? The colors of course you have to post. You enhance थोड़ा सा contrast वगैरह You have to. पिक्चर्स यही है, with AI coming in, ऐसे क्या लगता है आपको? As in, passion ठीक है, आप तो you will continue to do whatever you're doing, but do you think that ये थोड़ी नाइंसाफी हो गई? नाइंसाफी क्या है? अब टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के साथ सब बढ़ रहे हैं तो आप भी साथ होइए. But yes, I will never encourage photo manipulation, जो कि अभी इंडिया में कहीं इनफैक्ट एक इंटरनेशनल कंपटीशन में हुआ था. एक इंडियन फोटोग्राफर थे जिनका नाम लेना ठीक नहीं है, बट उनकी इमेज वाज डिस्क्वालीफाइड बिकॉज दैट वाज प्रूव टू बी एन मैनिपुलेटेड पिक्चर. सो ये हो रहा है, बट हाँ, देयर आर मेनी थिंग्स टू प्रूव दैट दिस इज नॉट मैनिपुलेटेड, एंड ओनली सिंपल थिंग इज अ रॉ फाइल. आप रॉ फाइल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो. यू कैन एडिट, यू कैन पोस्ट प्रोसेस अ रॉ फाइल, बट यू कैन नॉट मैनिपुलेट अ रॉ फाइल. सो चीजें हैं प्रूव करने के लिए ऑथेंटिसिटी उसकी, तो वही करने का वक्त आ गया, कर भी रहे हैं लोग. देन अगेन ये जस्ट दी टाइम लाइन का जस्ट एक भैंसा मारा था, तो ये भैंसे के खून से गीले होके फिर सूख के मिले हुए हैं. ये एक बहुत डिस्टर्बिंग साइट है और बहुत कॉमन साइट है मसाई मारा की. तो जैसा आप पूछ रहे थे मसाई मारा के लिए, तो काफी लोग होते हैं जो कि इंडिया के वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को ब्लेम करते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिसमैनेज करता है. सो आज तक इंडिया में ऐसी चीज तो कभी नहीं हुई है कि कोई जानवर गाड़ी के इतने पास आके या पैर रख के बैठ गया हो. अगर होती है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेक्स श्योर कि ये चीज आगे ना हो, आगे जो भी एक्शन लेना है वो करते हैं. बट वन ऑफ द वर्स्ट एंड मिसमैनेज टूरिज्म आई हैव सीन इज केन्या. एब्सोल्युटली मिसमैनेज एंड बहुत हरास करते हैं जानवरों को. So this is one of the example. If you see उसके मुंह में प्लास्टिक का बैग है लाइन करके, एक प्लास्टिक का बैग लेके वो एक लैंड रोवर के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है. अब यहाँ अगर ड्राइवर चाहता तो गाड़ी भी तो रिवर्स कर सकता था, बट सिर्फ टिप के चक्कर में एंड लोगों को नया कुछ एक्सपीरियंस देने के चक्कर में ये सब वहाँ पे बहुत कॉमन प्रैक्टिस है. Is it Kenya? Is it okay? हेलो. Is it Kenya जहाँ पे you take flight वो सीधा आपको रिसोर्ट के पास में ही पहुँचा देती है? चार्टर्ड प्लेन्स है. चार्टर्ड प्लेन्स आपको सीधा रिसोर्ट पे पहुँचाते हैं वहाँ पे. Of course they charge you a bomb for the experience and all of that stuff. So this is also the place where migration happens. Yeah. This is given the Great Migration. Great Migration. Everybody knows the Great Migration. I'm sure. उसकी है क्या कोई तस्वीर? उसकी मैंने बताना जरूरी नहीं समझा क्योंकि वहाँ प्रमोट क्यों करना हमारा. बिल्कुल. ये तालियां. चलिए आगे बढ़ते. So the rainforest, rainforest की भी कुछ ऐसी इमेजेस जो कि पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है.
फोटोग्राफी करते वक्त कितने बार डेंगू, मलेरिया या ऐसी चीजें हुई है? और होता है टू गेट दैट परफेक्ट शॉट। आई हैव सीन अ फोटोग्राफ जहां पे एक फोटोग्राफर ऐसे वेट कर रहा है और उसके पूरे हाथों पे मच्छर है। अमेज़न में ये फोटो खींचा गया था। कितने बार ऐसे हादसे हुए आपके? आप हुए तो कभी हुआ है। प्रोटेक्शन इतना ज्यादा मच्छर तो काटते हैं, वो तो बात है, बट बीमार कम पड़ते। बीमार, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। सो ये बर्ड इज कॉल्ड ओरिएंटल ड्राफ्टिंग फिशर। सो ये वेस्टर्न घाट्स में मिलता है। ओके, सो वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटक तक के। तो ये छोटा सा इतना सा बर्ड है एंड हार्डली 220 ग्राम इसका वजन होता है इस बर्ड का। बट इस छोटे से बर्ड में इतने ज्यादा कलर्स हैं कि आप ही अगर फोटो में देखेंगे तो आप ही को पता चलेगा कि कितना वाइब्रेंट ये बर्ड है। वरुण, इसमें कौन सा लेंस यूज कर रहे थे आप? यहाँ मैं यूज कर रहा था एक कैनन का 500 है, 500 कैनन 500 f4। Okay, now just to give you an idea, people who are not photographer, 500, मैम सर ने बताया, how much a 500 lens cost? Just give them a raw idea. 500 is 8,60,000 का MRP है। Lens, कैमरा नहीं, lens. तो इसके बाद जो बॉडी यूज किया था that was Canon R3 which is 4,75,000 एंड जो मेमोरी कार्ड इसने यूज किया था that was 48,000। 13.5 लाख का फोटो है, देखो। कैमरा सिर्फ कैमरा और लेंस लेने से फोटो नहीं आते, आपको यू शुड नो हाउ टू एग्जीक्यूट। जैसे एक होता है ना कि अच्छा कुकर लेने से तो खाना नहीं बनता है ना, अच्छा खाना बनाना भी आना चाहिए, बस सेम चीज है, अच्छा कैमरा लेने से यू डोंट बिकम अ गुड फोटोग्राफर। देन दिस इज अ डंग बीटल। इतना सा एक कीड़ा होता है जो कि अपने शरीर से 1000 गुना ज्यादा वजन अपने पीछे के पैरों से ढकेल सकता है। तो ये डंग बीटल या बीटल। देन हमारा एरिया सेंट्रल इंडिया, जहाँ हम सब जिन्होंने पूरे पार्कों के बारे में सुना होगा, वहाँ की कुछ इमेजेस जो मैंने बनाई है वो सब चीजें। एक चीज जब मैं पहली बार गया था ना, तो मेरा एक क्यूरियस क्वेश्चन था, जैसे रॉयल बंगाल टाइगर मैंने पूछा था, तो आई वांटेड टू चेक विद द अथॉरिटीज कि लोग कभी, आप जब सवाल पूछेंगे ज़हन में रखना, लोग ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं? कभी सोचा है आपने फॉरेस्ट में ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं? कैमोफ्लेज करने के लिए, क्योंकि ना एनिमल्स को जब ब्राइट कपड़े आप पहनते हैं ना, तो यू नो काफी तकलीफ होती है। तो दिस इज बेसिकली, मुझे पता नहीं था इनिशियली, हम गए थे ना, क्यूरियस क्वेश्चन कि मुझे लगा झाड़ियों में वही कैमोफ्लेज होने के लिए, बट मेनली दिस से ये तो भी ठीक है, यू नो इफ यू गो अप नॉर्थ, नॉर्वे वगैरह में वुल्व्स जो है उनकी सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा है, तो अगर आप परफ्यूम कुछ लेके जा रहे हो, सब आपको क्लीन करके फिर उनको मिलने भेजते हैं वहाँ पे। सो दिस इज द वन थिंग व्हिच आई came to know that I thought I'll share this with you. सारे डिफेक्टिव माइक मेरे ही कॉल में देखे रखे। सो कैमोफ्लेज का एक वो रीजन भी होता है, और दूसरा है कि कपड़ों पे धूल कम दिखती है। सो वी यूजुअली डोंट प्रेफर कैरिंग ज्यादा कपड़े। हम सोचते हैं 2-4 जोड़ी काफी है, वैसे भी जंगल में नहाते तो है नहीं। सो 2-4 जोड़ी कपड़े अगर 5-6 दिन 8 दिन चल गए, तो उससे ज्यादा कपड़े कम करके कैमरा इक्विपमेंट ज्यादा ले चलो। सो एक्चुअली हम नहीं करते। तो ये सब कपड़ों पे आप धूल भी अगर होगी, धूल मिट्टी भी, तो वो जल्दी दिखती नहीं है। ज्यादा कुछ हुआ तो बस चटक लो पहनो। आप मचान वगैरह पे रहे हैं फोटोग्राफी के लिए? मचान वगैरह में नहीं, मचान में मैं रहना इतना प्रेफर नहीं करता हूँ। एक्सपीरियंस के लिए लोगों का ठीक है, बट फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू आई डोंट प्रेफर मचान। माय क्वेश्चन वाज, अगर आप मचान पे रहे हैं, इफ द नेचर कॉल्स, व्हाट डू यू डू देन? मचान के ऊपर से हां, उठने से भी पीछे कहाँ है? ठीक है। सो ये एक पिक्चर है। दिस पिक्चर आई कैन से दैट ब्रॉट ताडोबा ऑन द ग्लोबल मैप ऑफ टूरिज्म। ये एक 2010 का एक इमेज है। इस पिक्चर को काफी नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले थे, काफी पब्लिकेशन हुए थे इस पिक्चर के। सो इस पिक्चर के बाद काफी लोगों ने ताडोबा जानना शुरू किया था। देन ये एक रीसेंट पिक्चर है लास्ट मंथ का फ्रॉम पन्ना टाइगर रिजर्व, जहाँ पे टाइग्रेस ने उसकी खुद की साइज से बड़ा एक सांप डियर मारा हुआ था।
तो जस्ट हम आई थिंक 1-1.5 मिनट यहाँ लेट हुए थे, वरना शायद ये हंट हमारे सामने ही होता। तो हम जब थे तब ये सांबर के पैर हिल रहे थे, वो जिंदा था। तो टाइग्रेस भी हाँफते हाँफते रुक गई थी। सांबर हमारा हो चुका था, बट ये मोमेंट काफी रेयर था। And a beautiful leopard from Pench Tiger Reserve. And again, this is Panna Tiger Reserve. And ये पिक्चर इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो आप बच्चा देख रहे होंगे, that cub would be around 1-1.5 साल की उम्र है बच्चे की। And usually ये एज में टाइगर के बच्चे दूध नहीं पीते। So I was lucky enough to witness this कि 1.5 साल की उम्र में भी ये ऐसा बच्चा दूध पी रहा है। I am lucky enough to document this moment. Then yes, this is a very recent picture. I can say शायद 24 घंटे पुराना भी नहीं है ये पिक्चर। अभी yesterday Not even 24 घंटे, yes. ये फोटो कल 4:10 के शाम में। So there is a wildlife sanctuary called as Gotangaon near Nagpur, जहाँ पे एक टाइग्रेस है 5 बच्चों के साथ। So मैं पिछले 5 दिनों से वहीं था गोटनगांव में। तो वहाँ पे मेरी कोशिश थी कि ये टाइग्रेस और इसके 5 बच्चे एक साथ डॉक्यूमेंट कर पाए। तो अभी तो ये 4 मिले थे। एंड फिर एक सबसे कॉमनली पूछा हुआ सवाल, इज वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी रिस्की? लाइक जैसे आपने पूछा कि जानवर तो कुछ नहीं करता है, मैन इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन। सो इन कुछ इमेजेस से आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि क्या इसमें रिस्क है या नहीं। सो इफ यू सी दिस पिक्चर, ये मैं अपनी तारीफ करने के लिए फोटोज बिल्कुल नहीं दिखा रहा हूँ कि देखो मेरे पास टाइगर बैठा है, ऐसा कुछ नहीं। बट हाँ, पास तो बैठा था, एंड एक नहीं 2 है। इफ यू सी, आप वहाँ घास में भी एक दूसरा बच्चा बैठा हुआ है लेफ्ट कॉर्नर। तो यहाँ पे भी होता ये है कि टूरिज्म के टाइम पे जब जिप्सियाँ लाइन लगा करके खड़ी हो जाती है, तो हम उसमें से एक थे जहाँ हम फंस करते थे। आगे भी गाड़ी, पीछे भी गाड़ी, आप करोगे क्या? अब टाइगर्स आर यूज्ड टू द व्हीकल, तो टाइगर्स उठे हैं हमारे बगल में आकर कैसे बैठे थे, तो उसमें वी वर लाइक हेल्पलेस। उसका और एक अच्छा लगा मुझे, उसमें आपने बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपके ब्रांड का प्रमोशन भी कर दिया है, इसलिए यहाँ तो ये वीडियो से आपको समझ में आएगा कि टाइगर कितने पास थे। सो अगेन ये भी एक वाइड एंगल पे लिया हुआ पिक्चर है। ये कुछ दिन 2 दिन या 3 दिन पहले लिया हुआ पिक्चर है। ये भी एक सब एडल्ट बच्चा है जो कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस था गाड़ियों को देख करके। सो आई शॉट दिस ऑन 24mm व्हीकल में बैठ के ही। एंड अगेन ये भी इतना पास आ गया था ये टाइगर भी, मेरी फोकसिंग रेंज के अंदर आ गया था, तो इसलिए फोकस भी नहीं हो पाया उस पर, इतना पास था। सर उतरा नहीं था कार से। सो अगेन ये वाइल्ड एलिफेंट ऑफ कोर्स फ्रॉम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। एंड ये पिक्चर मैंने बनाया था 11mm पे, जिसमें हाथी का डिस्टेंस शायद ये टीवी के आसपास होगा। बताने का एक इंटेंशन यही है कि जब तक हम वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब नहीं कर रहे तब वो भी हमको कुछ नहीं कर रहे। अब हाथी जैसा जानवर अगर कुछ नहीं कर रहा है तो फिर यहाँ भी हाथी जस्ट आया एंड वहां से निकल गया। अगर कुछ करता हाथी तो मैं आज शायद बात भी नहीं करता। सो ये तरीका होता है टूरिज्म मैनेज करने का। जैसे ये पिक्चर है, आप पीछे गाड़ियां देख सकते हैं कितनी पीछे है। तो यहाँ पे जब टाइगर को स्पेस दी गई है तब टाइगर अपने रोड पे चल रहा है। एंड ये फोटो को भी 24 घंटे नहीं हुए हैं, ये कल शाम का है। एंड जैसे आपने तभी सवाल किया था कि अफ्रीकन लायन और इंडियन लायन। सो ये अफ्रीका के हाथी और इंडिया के हाथी का एक फर्क है। लाइक वो भी हथनी है। अफ्रीका में फीमेल एलिफेंट्स को भी टस्क होते हैं जो कि इंडिया में नहीं होते। एंड आप अगर वहाँ स्किन का टेक्सचर भी देखेंगे उनका तो काफी अलग होता है एज कम्पेयर टू द एशियाटिक एलिफेंट्स।
And ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, which is rare animal behavior. ये एक पिक्चर है, I would say like this is a once in a lifetime opportunity जहाँ पे एक लेपर्ड अपने बच्चे को मुंह में पकड़ के जा रहा है. टाइगर्स का मैंने काफ़ी देखा था, काफ़ी सुना था, बट लेपर्ड के केसेस ऐसे काफ़ी कम देखे गए थे, काफ़ी कम डॉक्यूमेंट किए हुए हैं जहाँ पे लेपर्ड अपने बच्चे को मुंह में पकड़ के जा रहा है. So this was Pench Tiger Reserve in June 25. Then ये टाइगर का बच्चा नहीं है. ये टाइगर का बच्चा नहीं है, लेकिन टाइगर के बच्चे से बहुत रेयर चीज है. दिस इज अ हॉक डियर. ये एक हॉक डियर है जो हमारे सेंट्रल इंडिया में नहीं पाया जाता है. ये उत्तराखंड का फोटो है जहाँ पे टाइगर से एक हॉक डियर मारा हुआ है. देन ये बहुत अच्छा मोमेंट, इसमें ध्यान से आप देखिए ना, 6 टाइगर एक नीचे सोया हुआ है. तो हम बेसिकली इस मोमेंट के लिए पिछले 5-6 दिनों से we were trying to get all 6 in one frame ready कराना. So ये पिक्चर है जो उस मोमेंट में. This is amazing. तो ये पिक्चर को भी एक्चुअली 24 घंटे अभी तक नहीं. This is brilliant. I'm sure, you know, I guarantee you that this image is going to make you win. I mean, I'm sure you are the बहुत. ये तो कमाल है. So even ऐसा लग रहा है ये ओसीरियस का बैनर देख रहे ऊपर. So even this is उमरेड कराना वाइल्ड सेंचुरी, एंड ये भी कल शाम की मैंने इमेज बनाई है ये. एंड अगेन वही, जब माँ बच्चों के पास पहुंची कहीं से किल करके, सो पूरे 5 बच्चे माँ की तरफ माँ को कटल करने के लिए आगे बढ़े थे. तो ये एक होता है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एनिमल बिहेवियर. मैं सबको कहता हूँ कि जो भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता है, आप अगर एनिमल का बिहेवियर समझ जाओ तो एवरीथिंग इज वेरी इजी. तो यहाँ हमको पता था कि बच्चे कहाँ पर हैं, माँ कहाँ से आएगी. तो अब उसके रूट के हिसाब से हमने अपनी गाड़ी प्लेस करके रखी थी. तो इस वक्त यहाँ पे शायद करीब 12-13 जिप्सियाँ थी जिसमें फोटोग्राफर से, बट लकीली और फॉर्चुनेटली आई वाज द वन जिसको ये सारे फ्रेम्स मिले, क्योंकि बाकी सारी गाड़ियाँ दूसरी तरफ थी जहाँ बच्चे आ रहे थे. बट यही अब बिहेवियर का स्टडी होता है. अगर बिहेवियर शायद उनको भी पता होता था तो मे भी शायद वो भी ये फ्रेम्स बना सकते थे. बट दिस इज वाइल्ड लाइफ. 2 सेकंड 5 सेकंड का काम होता है पूरा. जो 5 सेकंड में दिस वाज ऑल ओवर. देन दिस इज पन्ना टाइगर रिजर्व. तो ये मोमेंट ये हुआ था 2 साल पहले, जहाँ पे ये टाइगर्स के 4 बच्चे थे. एंड पन्ना हैज अ हिस्ट्री कि 2010 में वहाँ टाइगर्स खत्म हो गए थे पन्ना टाइगर रिजर्व में. एंड पन्ना में पूरे टाइगर्स रीइंट्रोड्यूस किए थे. टुडे पन्ना इज अ वेरी सक्सेसफुल पार्क विद मोर देन 90 टाइगर्स. तो ये उस मोमेंट का जो मैंने आपको वीडियो दिखाया उसमें से मैंने कुछ ये इमेजेस बनाई थी. तो बताने का एक इंटेंशन यही है कि वीडियोस देख के हमको एक अलग फील आती है. जब आप एक पिक्चर देखते हो तब आपको पता चलता है कि क्या एफर्ट शायद इसने लिया होगा या किस सेकेंड वो फोटो लिया होगा. देन अगेन ये भी एक काफी रेयर मोमेंट था जहाँ पे टाइगर से स्पॉटेड डियर एक बच्चा पकड़ के हमारे तरफ लेकर के आई थी. एंड ये मेरा एक लास्ट टॉपिक जो कि मैं व्हिच आई कंसीडर इट एज वेरी इंपॉर्टेंट की, जैसे कहावत है कि पिक्चर इज मोर देन 1000 वर्ड्स. तो स्टोरी टेलिंग इमेजेस वाइल्ड लाइफ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. तो ये जो इंसिडेंट की मैं इमेजेस की स्टोरी दिखाने वाला हूँ, ये 5-6 इमेजेस है जिसकी वजह से टाइगर कंजर्वेशन में शायद मैं समझता हूँ कुछ मेरा एक थोड़ा सा एक योगदान रहा है. क्योंकि ये फोटो 2016 BBC वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के फाइनल में रह चुके थे फोटो जर्नलिज्म में. उस टाइम मैं इंडिया से मैं इकलौता फोटोग्राफर था जो BBC तक पहुंचा था यही इमेजेस से. सो बेसिकली ये टाइगर एक कैनाल में गिर गई थी जहाँ पे वो फंस गई थी. एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको निकालने का ट्राई कर रहा था. सो ये कैनाल के गेट्स जो है डिपार्टमेंट ने ब्लॉक करने की कोशिश की थी लोहे के दरवाजों से. बट एक टाइगर का जो रॉ पावर होता है, ये हमारे आंख के सामने की बात थी. जब कैनाल से टाइगर निकला एंड वो लोहे का गेट उसने एक पंजा मार के तोड़ दिया था. अंदर घुसने की फिराक में वो टाइगर खुद वहीं फंस गया. सो ये जो इमेज थी ये फोटो जर्नलिज्म
की फाइनल में थी. इफ यू सी ये बेसिकली ये एक पिक्चर है जिसका एक थोड़ा क्रिएटिव काइंड ऑफ वर्जन ये था, जिसमें ये टाइगर की आंख दिख रही है कि वो कितना डरा हुआ है. सो ये ऐसे फंस गई थी टाइगर यहाँ पर. तो इफ यू सी उसके फोरहेड पे भी लगा हुआ था एंड काफी इंजरीज हो गई थी. सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम भी वहां पर थी, काफी लोग भी थे. ऑफ कोर्स लोकल्स को भी क्यूरियोसिटी होती है क्या हो रहा है देखने की. बट नागपुर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वो टाइम इतने सही तरीके से ये सब चीज मैनेज की, सब भीड़ कंट्रोल की. एंड उसके बाद इस टाइग्रेस को वहां से ट्रैंकुलाइज करके उसको रेस्क्यू किया गया. इफ यू सी वो सेकंड पिक्चर में हम ट्रैंकुलाइजर भी डार्ट लगा हुआ है टाइगर को. सो इसको ट्रैंकुलाइज करके टाइग्रेस को रेस्क्यू किया गया. रेस्क्यू करके इसको फिर से वाइल्ड में छोड़ा गया. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वाज कि 1 साल के अंदर ये टाइग्रेस ने 2 बच्चों को जन्म दे दिया. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो फोटो स्टोरी थी, ये जो फोटोज थे, ये काफी जगह पब्लिश हुए थे. एंड ये किस्सा है नागपुर से एक करीब 70 किलोमीटर दूर एक जगह है वहाँ पर. सो वहाँ पे जो कोसी खुर्द कैनाल के आसपास जो ओपन कुएं या कैचमेंट एरिया बोल सकते हैं, वो सब खुले थे. तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बाद में वो जब सारे बंद किए, उसके बाद आज तक कभी वैसा इंसिडेंट हुआ ही नहीं. एंड दिस इज 2011. तो हो सकता था अगर यहाँ पता नहीं चलता कि टाइगर यहाँ अंदर फंसा हुआ है तो कुछ भी हो सकता था आगे. बट उस दिन से आज तक 2011 से 2025 तक अभी तक ये इंसिडेंट कभी हुआ ही नहीं. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि photography, wildlife photography can be used as a good conservation tool. So this was a success story of tiger conservation through photography. Of course, amazing, amazing. Well, I wish I had more time to ask you for your questions. Apparently, we have been told that we are running short of time. So, with all due respect, you may ask him questions once we are done with the session. But Varun, thank you so much. What a tremendous talent you are. क्या करना चाहिए हमें after seeing all these images? Thank you. You deserve this and much more. May you rise and shine and make us all proud as a country, as a city, as a fraternity. Thank you very much. It was a complete pleasure talking to you.